Okay. Hello, everyone. So, yesterday uh, we discussed about the different structures of the hydrates followed by the problems with drilling, and then we discussed the production methods also. So, let us continue the discussion on gas hydrate. Today, first I am going to introduce its hazards, and then we'll shift to the prevention also. So, after that, the next important section in gas hydrate will be the prevention of the gas hydrates. So how do we prevent? How do we? What are the methods available to dehydrate the gas? And what are the methods available to avoid the uh, formation of gas hydrates in pipeline? These will be discussed in the next section of this lecture. Any doubt from the previous classes? If you have any, so please let me know so that we can discuss it now and then we'll move ahead. Okay, there is no doubt. Then let's go ahead. So, I told you that the gas, I also have shown you the video. The gas which is coming from the bottom of the ocean is actually methane, and it's a more powerful greenhouse gas, and its impact on the environment may be more detrimental. But then you can see in marine sediments, they are their melting of these methane hydrates is continuing because of the rise in the seawater level and its temperature. So see, methane is continuously seeping from the surface, and it is going to mix with the seawater, and then it's converting into CO2. तो थोड़ा सा फॉर्चुनेट है कि CH4 डायरेक्टली नहीं जाती है, CO2 में कन्वर्ट होके जाती है, because of seawater. Otherwise, methane, if it goes directly to the, it will be more powerful greenhouse gas. But still, CO2 is concentration is continuously increasing, and it's giving serious alarms. तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ये सब मीथेन हाइड्रेट इसमें रोल प्ले करते हैं, एंड उनका भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन है, एंड सो so this is about the its hazards on the environment. So how it is going to affect the environment? It is going to affect the environment through CO2 emissions. Then, as I said, if the gas, if you look at the oil well, oil and gas well, so it's though it is a source of energy, but it has also hazards. Like if it comes in the well and giving the sign of gas kicks, so there may be accidents also. So this may also happen in gas hydrated wells. So potential hai, but it requires serious precautions also. Then if we talk about that, why we should study the clathrates or hydrates, so there are so many areas where people are still looking the answers, and therefore this study becomes very important for the investigation or study or work in this area. सबसे पहले तो important है कि interactions within the hydrate structure on a molecular level. As I said you, it is very, I mean the people are still trying to understand what is the molecular level पे जो interaction हो रहा है ना, that is not much reported in the paper, और उसकी understanding makes very very important sense. Like for example CO2 CH4 का जो molecular interaction है, जिसमें आपको replacement मिलता है CO2 से CH4, वो interaction जो है ना molecular level पे, it has not been reported or understood so far. Because I already told you this reaction is very slow. So this can be improved if you can understand the interaction at the molecular level. So therefore इसलिए भी इसको पढ़ना चाहिए, इसको इसमें काम करना चाहिए. Then there are so many pressure and temperature studies available where we can think about the clathrate hydrates. ठीक है, तो उन टेम्परेचर और प्रेशर की जो स्क्रीनिंग करनी है फॉर डिफरेंट रिजर्वायर फॉर डिफरेंट सलाइन एक्टिवर्स में भी आ रहा है अभी ये, और CO2 भी कर रहा है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टोरेज. So it is very important to identify the or to make a
और टू स्क्रीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ दीज लोकेशंस। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट प्रिपेयर ए चार्ट and try to see how many what could be the range of pressure and temperature where CO2 और CH4 हाइड्रेट की जो रिकवरी है और CO2 का जो स्टोरेज है इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स कैन बी प्लान्ड। देन ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग में जो इफेक्ट है ऑन मैराइन मीथेन डिपॉजिट से, तो वो भी समझने के लिए हमें गैस हाइड्रेट में काम करना चाहिए। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड व्हिच इज वेरी सीरियस फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। Then potential global implications of gas hydrate as a future sustainable energy source. Yes, so the people are thinking कि जो oil पे dependency it can be actually removed if we trap them successfully. और gas hydrate itself is a very important source of energy और significant amount में है अभी, तो इसलिए भी इसको काम करना चाहिए इस एरिया में because it's a source of energy, a very potential source of energy. So these are four things and then सेफ्टी इन ऑयल वेल ड्रिलिंग ऑपरेशन मैंने बताया था, इफ यू आर गोइंग टू ड्रिल थ्रू दी गैस हाइड्रेट्स फॉर ह्यूमन लाइफ एंड आवर प्लेनेट, तो इसलिए भी उसमें जानना है कि ये जो सेफ ऑपरेशंस कैसे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग डीपर और डीपर जा रहे हैं और डीपर जा रहे हैं और गैस हाइड्रेट के थ्रू निकल के जाते हैं, तो वहां पर जो सेफ्टी के इश्यूज हैं दैट शुड आल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड और उनको और टर्न आउट करना चाहिए और बेटर प्लान बनाने चाहिए। Then potentially safe, efficient method, yes, for storing and transporting gases because almost any molecule that is not too polar can fit into clathrate water gauge. तो ये सबसे important है कि जो clathrate के जो water gauges हैं उसमें आप कोई भी एसिड गैस एज आई टोल्ड यू को स्टोर कर सकते हो और ग्रीन हाउस एमिशंस को कम कर सकते हो। इवन ये मुझे इसलिए बताना था इंपॉर्टेंट कि आजकल पीपल दो एरिया में बहुत काम कर रहे हैं और आप देखोगे तो इस एरिया में भी लोग पहुंचने लगे हैं विच इज H2 हाइड्रोजन स्टोरेज। लोग हाइड्रोजन स्टोरेज में भी आ गए हैं, हाइड्रोजन स्टोरेज को जियोलॉजिकली सोच रहे हैं। तो CO2 तो था ही जिसको हम सिक्वेस्ट्रेशन बोल रहे थे, अभी हाइड्रोजन भी चलने लगा है। हाइड्रोजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाइड्रोजन जो लोग हाइड्रोजन डेवलप कर रहे हैं ना किसी भी मेथड से, फ्यूचर में पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो उसके लिए हाइड्रोजन यूज होगी। तो जब ऐसी कंडीशंस में जहां पे पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा एंड वी विल नॉट हैव द कन्वेंशनल सोर्सेज अवेलेबल, तो जो ये स्टोर्ड हाइड्रोजन है ना दैट कैन बी यूज्ड टू डेवलप वाटर इन फ्यूचर व्हेन देयर विल बी स्कैसिटी ऑफ द वाटर। तो इस एरिया में बहुत काम चल रहा है और H2 को भी यदि हम हाइड्रेट फॉर्म में स्टोर कर सकें तो आप जानते हो जब हम इसे प्रेशराइज करके डालेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस जा सकती है और हाइड्रोजन स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स और CO2 स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स इज काइंड ऑफ परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, तो इसलिए भी इस एरिया में काम करना चाहिए बिकॉज देर आर सो मेनी पोटेंशियल्स और पोलर कंपाउंड जो भी है लाइक दिस लाइक देम कैन बी स्टोर्ड और कैन बी ट्रैप्ड इन द क्लैथरेट वाटर केजेस। तो इसलिए पोटेंशियली सेफ और एफिशिएंट मेथड है फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गैसेस, पर्टिकुलरली CO2 और H2। तो लोग आजकल H2 में भी काम कर रहे हैं, CO2 तो एनवायरमेंट में है ही इशू, तो दोनों गैसेस को हम जियोलॉजिकली स्टोर कर सकते हैं। एक का पर्पस ग्लोबल इम्पैक्ट है, दूसरे का पर्पस ह्यूमन नीड है इन फ्यूचर, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। और क्लैथरेट्स के बारे में आप यदि आप CO2 का स्टोरेज सोचें तो मैंने पहले ही बताया था CO2 हैज वेरी अपीलिंग कंडीशंस फॉर मेकिंग हाइड्रेट्स। तो स्टोरेज बहुत है उसका अपीलिंग दिखता है, प्रॉमिसिंग दिखता है। सो इफ इट कैन बी इन दी इन मीथेन तो वहां पे स्टोरेज और रिकवरी साइमल्टेनियसली हो सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज व्हिच मोटिवेट्स अस or the people to work in these areas and there's so many questions हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट भी पूछ रहे हैं, इंजीनियरिंग पीपल भी पूछ रहे हैं, जोलॉजिस्ट वाले भी पूछ रहे हैं। तो सबके सामने बहुत चैलेंजेस हैं इन गैस हाइड्रेट्स के रिकवरी में एज वेल एज जो इनका इम्पैक्ट है ना एनवायरमेंट पे उसके लिए भी। तो सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है कि आपको फ्यूचर में जैसे भी आपको दिख रहा है ऑयल की डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होगी, तो फिर वहां पर कोई दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो रिन्यूएबल है बट आई डोंट नो द फेट ऑफ रिन्यूएबल, बट ये तो सोर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है और सिग्निफिकेंट अमाउंट में फॉसिल फ्यूल फॉर्म में है ये। बट ये कि इसकी टैपिंग और इसका जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं और जो इंट्रैक्शन जैसे मैंने अभी समझाया वो थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग बन रहा है और उसको उसी एरिया में रिसर्च चल रही है और इसलिए मोटिवेट भी करता है। इट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ
गैस स्टोर है. तो these are some of the areas. So for that we should study the clathrates. Now there is also one more question. I think आपको पता रहना चाहिए. I included this, what is hydrate number. तो हाइड्रेट नंबर ये होता है कि जो जैसे मीथेन का एक सेल बनता है, यूनिट सेल, उसमें 6 पानी के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं. सिमिलरली आइसोब्यूटेन में 17 लगते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में 6, CO2, मतलब जितने भी आपको ये दिखेंगे ना, CH4, CO2, H2S, तो इन तीनों में, हाँ N2 में भी, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं. तो जो नंबर ऑफ पानी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेट नंबर. तो कोई आपसे पूछे हाइड्रेट नंबर क्या है, तो यूनिट सेल में द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग टू मेक ए केज, ठीक है, और द ट्रैपिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 और CO2 और H2S, so that number is actually called the hydrate number. Any doubt, please let me know. तो अब आता है सबसे इसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाइड्रेट, व्हिच इज द हाइड्रेट फेज बिहेवियर. तो ये आई थिंक आपने पहले सुना होगा. तो मैं इसको कवर करता हूँ. आपको जहाँ पे भी कोई डाउट हो फिर से तो बताइए, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डिस्कस इफ यू हैव एनी डाउट क्वेश्चन. तो हाइड्रेट फेज बिहेवियर में यूजुअली व्हेन यू विल प्लॉट द डेटा इन द लैब और जहाँ पे भी आपके पास डेटा है, it will be in between pressure and temperature. Pressure and temperature. So in this hydrate curve, we will have, usually we'll see hydrate curve first. This ABCD is actually the hydrate curve. और इसमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन है, राइट हैंड साइड में और लोअर साइड में इधर की तरफ देयर इज नो कंडीशन फॉर द हाइड्रेट फॉर्मेशन. हियर हाइड्रेट्स आर वेरी अनस्टेबल और वो बनते भी नहीं हैं इस कंडीशन में. तो ये जो प्रेशर का रेंज है ना, ये वाला, ये सब टेम्परेचर का भी रेंज जो है, ये सब अभी तक अनटैप है. ठीक है, तो क्या है कि ये प्रेशर रेंज भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करते होंगे. तो यदि उन कंडीशन पे आप हाइड्रेट बना सकते हो, तो इट मींस यू कैन एक्सप्लोर मोर एरियाज और यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेट स्टोरेज, सॉरी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेट लाइक फॉर द कंडीशंस ऑफ डिफरेंट प्रेशर एंड रिजर्वायर. तो उसके लिए क्या करना है, ये हाइड्रेट जो कर्व है ना, इट शुड बी हियर. और बढ़ाना है तो इट शुड बी हियर. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू शिफ्ट द कर्व ऑन राइट हैंड साइड, तो दीज एरियाज विल आल्सो बी एक्सप्लोर्ड. यहाँ पे हाइड्रेट बन सकता है. और ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी डिप्लीटेड रिजर्वायर में, सैलाइन एक्यूफर्स में भी लोग सोच रहे हैं, तो वहां पे मिल जाए. जिस मच प्रेशर पे जहाँ पे बन नहीं रहा था और जो टेम्परेचर है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो वो इस कंडीशन पे बन सकता है. दैट प्रेशर, सॉरी दैट टेम्परेचर एंड दैट प्रेशर. ठीक है, यूजुअली हाइड्रेट कर्व में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. जो सबसे इंपॉर्टेंट कर्व है, एक तो ये ए बी, एंड सबसे जो हाइड्रेट को मेन प्रश्न है वो ये है. मैंने आपको नोट्स दूंगा इसके, उसमें सब डिस्क्रिप्शन है ये, और एक CD, ये 3 इंपॉर्टेंट कर्व हैं. तो जो सब एक्चुअली दिस जोन यहाँ देखोगे ना, यहाँ टेम्परेचर इज वेरी लो. ठीक है, ये जो जोन है इट इज वेरी हार्डली और रेयरली अवेलेबल होता है हाइड्रेट में कहीं भी. इतना कम टेम्परेचर पे हाइड्रेट बहुत मुश्किल से मिलता है, और वहां पर प्रेशर भी देखो बहुत लो है. तो इस जोन में हाइड्रेट बहुत मुश्किल से ही एग्जिस्ट करते हैं. इवन यदि यहाँ तक भी देखोगे ना आप, मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ, ये जो है ना, ये है जोन, बट यहाँ पर जो लो टेम्परेचर है, ये जितने भी लो टेम्परेचर पे पड़ रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मली आप देखो हाइड्रेट भी बनता है, हाइड्रोकार्बन वेपर भी है, और आइस भी बनती है. बट आप इस जोन में देखो, हाइड्रेट है, हाइड्रोकार्बन वेपर है और वाटर है. तो प्रॉब्लम क्या है कि जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे पानी ऑलरेडी आइस में रहता है, तो सॉल्युबिलिटी के इश्यूज आने लगते हैं. बट इस जोन में हाइड्रेट इज वेरी स्टेबल रहता है, और पानी भी रहता है, और हाइड्रोकार्बन वेपर भी, मतलब जो गैस है दैट इज आल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ वेपर. तो इस ग्राफ के अलावा देयर इज वन मोर ग्राफ which is here, HFCI. This is the hydrocarbon vapor pressure curve. That means on upper side where the pressures are higher, this hydrocarbon will be in liquid form. ठीक है, तो आप जानते हो कि आपको गैस हाइड्रेट के लिए गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, तो नॉन इसको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा वेपर में. तो नीचे की तरफ जो एरियाज हैं, इससे
दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर ही आपको सबसे स्टेबल हाइड्रेट मिलेगा ये सब। तो देर इज ए क्लियर डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन है कि इस साइड देर इज नो हाइड्रेट, इस तरह का एरिया थोड़ा सा बहुत लो टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, बिकॉज आइस ऑलरेडी बन जाता है और वेपर, ठीक है। और ये मेन एरिया ना, ये दिस वन, दिस इज अवेलेबल फॉर दी स्टेबल हाइड्रेट्स। ये जो एरिया है ये हमें स्टेबल हाइड्रेट दे सकता है, ठीक है। और ये जो, अब आप देख लो कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर हाइड्रेट फॉर्मेशन के यही है। मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर ये है जहां तक आप हाइड्रेट बना सकते हो, और मिनिमम आप स्टेबल हाइड्रेट की बात करो तो एफ है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोकार्बन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो हाइड्रेट का जो डेवलपमेंट है स्टेबल, वो थोड़ा अनस्टेबल होने लगेगा। तो सबसे स्टेबल जोन यही है। तो हम करते क्या है, इसी ग्राफ को बीसी को थोड़ा सा शिफ्ट करा लो इधर, और थोड़ा शिफ्ट करा लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी हाइड्रेट ग्राफ में दिस कर्व है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कर्व, क्योंकि दिस कर्व इज कांस्टेंट, ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, ये तो कंटिन्यूअसली एक ही प्रेशर, एक ही टेम्परेचर दे रहा है मुझे। बट हियर टेम्परेचर इज वेरिंग, यू सी, ये द टेम्परेचर इज वेरिंग, मैक्सिमम टेम्परेचर हमें सी पे मिलता है। तो ये जो एरिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हाइड्रेट पोटेंशियल, और इसी पे लोग काम कर रहे हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस बाय शिफ्टिंग ग्राफ्स। और अभी आप, हाँ यस, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, सपोज आई एम हैविंग एन हाइड्रेट विद दिस कर्व व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रेट कर्व, ये है मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको एक ग्राफ पहले भी ड्रॉ करके दिखाया था कल। जब भी आप हाइड्रेट के लिए एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ग्राफ ऐसे ही मिलेगा कुछ, ये ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा। तो ये जो ग्राफ है ना, यही एक्चुअली बीसी है, जिसके लिए हम परेशान होते रहते हैं। दिस इज बी एंड सी, वो तो बीसी ग्राफ है ना, वो यहाँ पे ये दिख रहा है बीसी। तो इसी ग्राफ को इफ यू कैन शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज बेटर, यू कैन एक्सप्लोर मोर प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस फॉर दी हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो ज्यादा हाइड्रेट स्टेबल बनेंगे, इन कंडीशन पे भी बनेंगे। अब तो उसके लिए हम प्रोमोटर्स डालते हैं, और यदि आपको उसी कंडीशन को रिड्यूस करना है, देन दिस कर्व विल शिफ्ट हियर, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है दिस हैज बिकम अनस्टेबल, इधर हाइड्रेट बनेगा ही नहीं, ठीक। so that way we try to understand, we try to simulate the behavior in the lab, ठीक है। और जो भी आपके पास हाइड्रेट है, सबसे पहले जब भी आप कभी हाइड्रेट पे काम करने जाओ, तो सबसे पहले आपको सैंपल देखना है, सैंपल में वेरिएशन लाओगे। तो सपोज एक पर्टिकुलर सैंपल आपने लिया और मेरे को ग्राफ ऐसा कुछ मिल गया, फिर सेम सैंपल में आपने सपोज 2-8% सॉल्ट डाल दिया, या फिर 2-8% एसडीएस डाल दिया, या हो सकता है आप पॉलीमर बेस बनाना चाहते हो सकता है ये ग्राफ इसको फॉलो ना करे, तो थोड़ा सा ऐसे चला जाए, हो सकता है ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है। So these are very important information for us, that what is the effect of these additives which actually affected the hydrate formation and its phase behavior. तो ये इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट होना, that is very important information for the people, ठीक है। तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, ये पानी का है, फ्रीजिंग फ्रीजिंग वाटर फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है। इसके इधर रहोगे और ये इधर रहोगे तो आइस में चले जाओगे, इधर आप पानी वाटर फॉर्म में रहोगे, ठीक। और ये जो ये हाइड्रोकार्बन का है, इसके अपर साइड में लिक्विड होगा, नीचे गैस होगी। और ये हाइड्रेट कर्व है, राइट हैंड साइड में हाइड्रेट बनेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रेट बनेंगे। उस बनने में भी कहाँ पे स्टेबल जोन है, वो ये है। दैट्स ऑल, दिस इज द कंप्लीट स्कैनिंग ऑफ दिस हाइड्रेट कर्व, हाइड्रेट फेज बिहेवियर। आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, और यू कैन डिस्कस इफ यू हैव एनी डाउट। नो मोर डाउट, नो डाउट।
Anyone who is having doubts? There is one question from Amir. Sir, why the upper and left hand side of the middle triangle, upper this one and left hand side मतलब this one, are not stable for hydrate formation? देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि ये पहले एक ही ले लेते हैं अमीर ये वाला। देखो ये जो जोन है इसमें पानी जो है आइस में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। दो आपके पास हाइड्रोकार्बन वेपर ही रहती है, बट जब आप आइस देखो मैंने उस दिन भी बताया था ये शायद किसी को लैब में जो स्टीयरिंग डिवाइस है आमिर सबको ही मैंने बताया था, जब भी आप स्टीयरिंग करते हो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको, आपके पास जो भी स्टीयरिंग करोगे जब भी आप स्टर करते हो तो होता क्या है कि ऐसे कोई एक लेयर बना होगा जिसमें अभी मैंने मिक्सिंग नहीं करा है, दिस इज वाटर और दिस इज बबल मतलब गैस जो आपने डाला है। अब प्रॉब्लम क्या है, सम पीपल डोंट नो, दे स्टार्ट कूलिंग इमीडिएटली, और वो अभी आपने कूलिंग भी चालू कर दिया और स्टीयरिंग भी चालू कर दिया। तो जैसे ही आप कूल करने चालू करते हो इमीडिएटली कूलिंग से ये गैस जो है ना इनफ मिक्स नहीं होती है। जब ये इनफ मिक्स नहीं होती है और कंटिन्यूसली इसमें इतना ज्यादा टर्बुलेंस, और हाँ एक चीज और है, स्पीड भी बहुत मैटर करता है स्टीयरिंग में। तो सपोज आपने मिक्सिंग से पहले ही पानी का टेम्परेचर डाउन कर लिया तो दिस विल बिकम आइस। और इसका इंडिकेशन कहां से मिल जाता है मुझे, यहाँ पर रोटर पे ना आउटसाइड में देयर विल बी कंटिन्यूस नॉइस, एक डिस्टर्बिंग सा नॉइस आने लगेगा विच विल इंडिकेट यू दैट आइस बनने लगा है। बट हुआ क्या, वो आइस बन गया और देन आइस बनने के बाद तो गैस और आइस का मिक्सिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम करते क्या है, सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कराते हैं। तो बहुत स्लो स्पीड पे, हाँ क्या है, स्टीयरिंग इज मेड टू इंश्योर नो फॉर्मेशन ऑफ आइस। नहीं नहीं नहीं, तुम इसलिए मैंने बोला स्टीयरिंग यदि बहुत तेज करोगे तो आपकी आइस टूटने लगेगी, बट नियर टू दी वॉल अवे फ्रॉम द स्टीयरिंग देयर विल बी आइस लेयर। और जो जो जितना भी स्टीयरिंग से दूर रहेगा पोर्शन, ये अपर ऑफ दी वॉल, यहाँ पर आपकी आइस की लेयर सबसे पहले ऊपर बन जाएगी। हाँ इनसाइड, आप कभी कैमरे में कोई गैस हाइड्रेट फॉर्मेशन देखना, इनसाइड आपको कंटिन्यूसली सर्कुलेशन दिखेगा, मैं दिखाऊंगा ये आपको, यहाँ पर आपको दिखता रहेगा सर्कुलेशन। बट अपर साइड में और वॉल की साइड में आइस डिपॉजिट होने लगेगा। तो जो भी गैस जो ऊपर की तरफ भरी होगी ना, दैट विल एक्चुअली विल नॉट बी एबल टू एंटर बिकॉज ऑफ दिस आइस लेयर। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कूलिंग तब चालू करते हैं, थोड़ा सा देर में कूलिंग चालू करो जिससे कि आइस बनने से पहले साइड में, तो स्टीयरिंग डिवाइस का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइस साइड में बनने लगता है वॉल पे, उससे पहले गैस इनफ अंदर आ जाए, चारों तरफ आ जाए, तब आप कूल करना चालू करो। Of course, near to the steering device, you will not have any ice formation. There will be continuous disturbance. वाटर का फॉर्मेशन आइस में आना डिफिकल्ट हो जाएगा, और जितना ज्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस इसमें से निकलती भी है, क्योंकि टर्बुलेंस उतना भी नहीं देना है। तो टर्बुलेंस बहुत स्लो दिया जाता है, बट टर्बुलेंस से पहले इफ साइड्स में कहीं पे भी आइस डेवलप हो गया तो जो गैस ऊपर है उसकी एंट्री इनटू द लिक्विड फेज विल बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। तो वही इस ग्राफ में है, if you already have the ice, so then the mixing of the hydrocarbon, और इसलिए ice बोल रहा हूं क्योंकि this zone has very low temperature, और इतना लो टेम्परेचर नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है हाइड्रेट्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रेट्स नहीं बनते हैं, हाइड्रेट्स बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर क्या आइस एग्जिस्ट करेगा, देन वाटर वेपर, हाँ इनकी मिक्सिंग होगी बहुत मुश्किल से पहली बात तो। इसलिए मैंने बोला, अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में आप आ जाइए। राइट हैंड साइड में तो बनना ही नहीं है, ऊपर आइए, ऊपर में आपके पास लिक्विड हाइड्रोकार्बन है। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इशू आ जाता है, प्रेशर इज हाई और टेम्परेचर भी रीजनेबल है, मतलब इसी जोन का प्रेशर ही इंपॉर्टेंट है। तो वो मिल तो रहा है यहाँ पे, बट होता क्या है, जब हमारे पास गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल CO2 ले लो, CO2 इन लिक्विड फॉर्म इज हैवियर देन वाटर, और ये भी स्टडीज में ही पता किया है, जब हैवियर हो जाती है तो पानी में बैठ जाती है नीचे की तरफ, ठीक है, और बैठने के बाद ये सब पानी ऊपर ही रहता है ऐसे, तो इसका मिक्सिंग फिर से डिफिकल्ट हो जाता है। तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द गैस ऑलवेज इन गैस फॉर्म।
और गैस फेज में रहेगी तो अच्छा रहेगा। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद मिक्सिंग उतना अच्छे से नहीं होता है, और क्योंकि वो हैवी होने लगती है और नीचे बैठ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो हाइड्रेट बनते हैं दे आर वेरी अनस्टेबल। और एक स्लरी फॉर्म में हाइड्रेट बनता है जो कि कंटिन्यूसली टूटता रहता है, तो दिस जोन इज अनस्टेबल जोन। नॉट हाइड्रेट बनते ऐसा नहीं है, बनते हैं बट दे आर अनस्टेबल। दिस इज वेरी स्टेबल जोन। यहाँ पर हाइड्रेट्स बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर पानी रहता है हमेशा अवेलेबल और गैस भी रहती है, तो मिक्सिंग भी अच्छी होती रहती है और हाइड्रेट भी बनता रहता है। और दिस टेम्परेचर इज अबव देन दी वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। नीचे जाओगे तो ओके, ओके सर, ओके। एनीवन एल्स? नीचे जाओगे तो वैसे भी बहुत लो टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहां पर इतने भी लो टेम्परेचर पे हाइड्रेट्स नहीं बनते हैं। हाइड्रेट्स का टेम्परेचर का रेंज ही यूजुअली 2 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इतना लो टेम्परेचर नहीं चाहिए हाइड्रेट्स के लिए। और इधर चाहिए टेम्परेचर, बट वहां पर क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा रहता है, तो ऑलरेडी लिक्विड में रहता है हाइड्रोकार्बन, तो वहां पे मिक्सिंग नहीं अच्छे से होती, गैस बैठ जाती है। CO2 का तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है। CO2 जब भी मिक्स करो ना और पानी बन गया तो फिर वो बैठ जाएगी, और पानी से हैवी होती है, तो लिक्विड फॉर्म में आते ही इट विल सेटल डाउन। सेटल डाउन होने के बाद मिक्सिंग नहीं होगी। एनीवन एल्स, एनी गुड, एनी अदर क्वेश्चन? दिस इज वेरी वेरी गुड डिस्कशन, क्योंकि हाइड्रेट के लिए जो इसमें समझ रहे हैं या नेचुरल गैस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में ये सब हमें पढ़ना है। और वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड बिफोर डिहाइड्रेशन व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइड्रेट्स एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द स्टेबल हाइड्रेट्स, अनस्टेबल हाइड्रेट्स, और कैसे उसको समझते हैं फेज बिहेवियर से। दिस इज एक्सप्लेन्ड हियर। और मैं आपको इसका हाईलाइटेड नोट्स भी भेज दूंगा, तो आपको कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। हाँ, हाइड्रेट कंट्रोल पे आते हैं। हाइड्रेट कंट्रोल इसका लास्ट पोर्शन है डिस्कशन का, बट बिफोर जंपिंग ऑन दिस आई विल शो यू वन 1 minute। वेट a minute। There is one numerical which I left in last class, so first we will solve this। ये हाइड्रेट के ऊपर है, and then we will go ahead। Wait a minute। So this was the last क्वेश्चन का ही, लास्ट ट्यूटोरियल का स्लाइड है। उसमें ये पहला क्वेश्चन वाटर कंटेंट का एंड देन कैम्बल मेथड डिस्कस हो चुका था, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग सबके लिए वाटर कंटेंट निकाला था। सो देयर वाज वन मोर क्वेश्चन ये बचा था जो मुझे आज डिस्कस करना है। दिस इज बेस्ड ऑन द गैस हाइड्रेट। यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन आई विल हेल्प यू हाउ डू वी डिटरमाइन दीज वैल्यूज फॉर द गैस। तो इसमें लिखा है हाउ फार कैन द प्रेशर बी लोअर्ड without expecting hydrate formation for a 0.685 gravity gas if it is initially at 1500 psi 100 degree Fahrenheit and 1000 psi and 100 degree Fahrenheit। तो दो कंडीशन है, तो कितने नीचे तक आप जा सकते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग हाइड्रेट फॉर्मेशन इन दी पाइपलाइन। ये पाइपलाइन के लिए है कि आप इतने प्रेशर और टेम्परेचर पे काम कर रहे हो और गैस का ग्रेविटी ये है, तो आप कितना प्रेशर डाउन रख सकते हो सो दैट देयर विल बी नो हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट में छोड़ दिया था ट्यूटोरियल में, सो आई थॉट दैट आई शुड इंक्लूड इट हियर एंड टुडे वी विल डिस्कस दिस। तो इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जा सकता है। हियर द ग्रेविटी इज गिवन, तो ग्रेविटी है 0.685 फॉर द नेचुरल गैस। तो फॉर दीज नेचुरल गैस अगेन ये सब तो डिस्कस हो चुका था ऑलरेडी, EMR मेथड।
कुछ चार्ट्स अवेलेबल हैं. This is approximate permissible expansion of 0.6 gravity natural gas without hydrate formation. तो ये कुछ यूज करते हैं हम. एक तो ये है, ये 0.6 ग्रेविटी के लिए है, जिसमें गैस का 0.6 ग्रेविटी मतलब आपको ऑलरेडी डिफाइंड है. बट कुछ हो सकता है कि जिसमें नेचुरल गैस के लिए ग्रेविटी ही डिफाइन ना हो. ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ चार्ट आते हैं, उसमें आपको ग्रेविटी स्पेसिफिक नहीं होगा. देयर इज a lag. 1 minute, let me open this one more time, तब देखते हैं. Is it visible now, Amir? ओके, क्वेश्चन स्लाइड. ठीक है, क्वेश्चन तो फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए. पहले क्वेश्चन है दिस. पहले दो तो हमने करा दी, मैंने करा दिए थे आपको. ये क्वेश्चन बचा हुआ था, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. एंड दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि रिड्यूस द प्रेशर. तो वो प्रेशर देखते हैं कहाँ तक हम गैस हाइड्रेट को बनने से बचा सकते हैं. तो ऐसा क्वेश्चन दिया है, पर्टिकुलरली पाइपलाइन का फ्लो एश्योरेंस का क्वेश्चन है ये. तो इसमें हमें ये जानना है कि क्या मिनिमम प्रेशर हम ले सकते हैं फॉर दैट मच ग्रेविटी ऑफ द गैस. ठीक है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे नेचुरल गैस भी लिख सकता था, फॉर ए नेचुरल गैस. ठीक है, वहां पर ग्रेविटी डिफाइन नहीं होती है, तो उसके लिए भी ग्राफ आता है. वो पर्टिकुलरली नेचुरल गैसेस के लिए होता है और डिफरेंट ग्रेविटीज के लिए होता है. ठीक है, और उस पर डिफरेंट ग्रेविटी की गैसेस होती हैं, मीथेन होती है, ये सब होता है. ठीक है, लाइक हमें कोई भी गैस है, अब उसका मान लो ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, लाइक 0.685 दिया है, तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ. एंड टेल मी इफ यू हैव एनी लैग. सो कैन यू सी दिस? Just wait, I think it will come. Is that visible to everyone, or is it not visible to anyone else who is not seeing this slide? Oh my God, not visible. Again, I will. 1 minute. Can you see this slide, question slide? Is that visible? Is that visible? This is second slide, graph. Wait a minute. Ah, 1 minute, 1 minute. I am coming.
I'm actually removing all the slides. I'm showing you the final slide of the graphs now. Yeah, is that visible? अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहा है? ये तो मैंने फाइनल खोला है. Yeah, I got your point. I don't know what is happening, but I have removed all the slides. I'm trying to show you only the question and the graph slide. I don't know why it is not coming. I'm trying last time. So this is my last try. Can you see this now? ओके. ओके, नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ. लेट मी ड्रॉ द बेसिक ग्राफ जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है. एंड फिर आप उसको कर सकते हो. हाँ, मैं ईमेल कर दूंगा आमिर. ये बिल्कुल, मैं स्लाइड भी ईमेल कर दूंगा और क्वेश्चन भी ईमेल कर दूंगा. लेट मी टेल यू द प्रोसीजर. जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ. तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, जैसे एक वन. लेट मी दी स्लाइड फॉर क्वेश्चन की स्लाइड खोल लेता हूँ पहले मैं. So this was the question. I think you can see this. ये तो आपको दिख रहा होगा. ये क्वेश्चन था मेरे पास. ठीक है. What is asked that we have a pipeline and the gas which is going through the pipeline has this much pressure and temperature. So there are two conditions, pressure and temperature, and it is asked that what could be the minimum pressure up to which you can actually reduce और जा सकते हो without expecting hydrate formation in the pipeline, without expecting the formation of hydrates in the pipeline. So this was the question. So अब इसमें क्या है? I'll let me tell you the procedure. So the data is given that we have 0.65 gravity gas, and these are the two conditions. So for that, there are actually two techniques to determine this. हमारे पास जो graphs available हैं, they are available in form of natural gas without any gravity. तो उससे भी निकाल सकते हैं. But some forms are for some graphs are available for the specific gravity of the natural gas. Specific
उसी के लिए डिजाइन किए गए हैं वो। जैसे दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर, तो यू विल हैव gas natural CH4, you may have H2S, you may have natural gas. So this is natural gas and it doesn't have any, suppose is any no specific gravity is given, but some graphs are given which is plotted for the particular specific gravity of the natural gas. So suppose I am plotting this graph which is given for the natural gas of having specific gravity 6. ठीक है, सो इस तरफ प्रेशर दिया है और यहां पर मुझे फाइनल प्रेशर दिया है, सॉरी। ठीक है, और यहां पर मुझे इनिशियल प्रेशर दिया है, P इनिशियल। और टेम्परेचर के जो प्लॉट्स हैं, दे आर प्लॉटेड लाइक दिस। तो अब इसी में आपके पास कहीं पे ये सपोज दिस इज 40, दिस इज 50, तो दिस इज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज सपोज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, और प्रेशर भी इधर मिला हुआ है आपको। तो सपोज आई हैव ए प्रेशर ऑफ सपोज 1500 psi, तो वो मैंने लिख दिया। और मेरे पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ था उसमें क्वेश्चन में, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोसीजर। इट इज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यहीं कहीं पे होगा। फर्स्ट यू ड्रॉ द लाइन टू द ग्राफ, सो सपोज दिस इज 100। अब जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है दैट विल बी द फाइनल प्रेशर। या up to this pressure you can reduce the natural gas without expecting any hydrate formation. Now I am asking, was that clear to you, the procedure which I have explained? Can you see this graph, whatsoever I have drawn, or is there any lag? Okay, Ankit. Okay, there was a lag. Can you repeat it once more? Ankit, I am asking, can you see this chart which I have plotted by hand? I will repeat the procedure, but can you see the chart? Okay, good. तो चार्ट में मैं दोबारा से प्रोसेस रिपीट करता हूँ। द क्वेश्चन से इज इन केस ऑफ गैस हाइट, सर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक तक लोअर कर सकते हैं ना, व्हाई विल हाइड्रेट फॉर्म? नो नो, यू कैन नॉट लोअर द प्रेशर टिल 1 एटमॉस्फेयर। व्हाई डू यू वांट टू रिड्यूस द प्रेशर अप टू 1 एटमॉस्फेयर? ठीक है, तो प्रेशर, पहली बात तो हाइड्रेट कभी बनेगा ही नहीं जब प्रेशर लोअर होगा, हाइड्रेट बनता है हाई प्रेशर पे ही। ठीक है, तो बट जब तुम लोअर करते नीचे आओगे तो पाइपलाइन में कौन तुमसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मांगेगा? कोई ऐसा भी एप्लीकेशन है कि आपको 1 एटमॉस्फेरिक तक लाना ही है? आपको स्टॉक टैंक में तो नहीं बोल रहे ना, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास 1500 psi का गैस है, वो पाइपलाइन में कितना प्रेशर रिडक्शन दे सकती है व्हेन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैस हाइड्रेट, और टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब 1 तक लाओगे तो बीच में कहीं हाइड्रेट आपको मिल जाएगा, तो 1 तक लाना है तो ला सकते हो, बट बीच में हाइड्रेट तो मिल गया ना। वो नहीं क्वेश्चन, वो नहीं है आमिर। क्वेश्चन है कि उस प्रेशर तक जाओ जहां तक हाइड्रेट बने ही ना। वो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रेशर के बाद, लाइक सपोज आपके पास 800 psi आ गया बीच में कहीं, तो यदि आप 700 आ गए और 600 भी आ गए, 500 आ गए, तो इन तीनों प्रेशर्स पे यू मे हैव द हाइड्रेट। हाँ, पॉसिबल ही है कि फिर 400 300 पे वो हाइड्रेट फिर से डिसोशिएट हो जाएगा, 100 पे भी डिसोशिएट हो, 1 पे भी तो बनेगा ही नहीं, बार पे। तो this pressure range which I have encountered during the pressure depletion, I don't want to see this. तो मैं मिनिमम से मिनिमम कितना प्रेशर दे सकता हूं? 800 psi सपोज।
तो 1500 से आप 800 psi तक प्रेशर गिरा सकते हो इन ए मैकेनिकल यूनिट, लाइक पाइपलाइन में या किसी हीट एक्सचेंजर में, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी हाइड्रेट फॉर्मेशन। और इसको फर्दर भी चेंज कर सकते हो अप टू 500 if you add any inhibitor, but I am not asking for addition of any inhibitor, so that you can increase the pressure limit by 300. So this is a different question होगा, वो अलग बात है, बट हम अभी इसी की बात करते हैं कि जब कुछ ऐड ना किया जाए। और 0.6 हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो अंकित का क्वेश्चन था। अंकित हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गैस ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंगली चार्ट्स अवेलेबल हैं which are plotted in between pressure and temperature and final pressure, up to which you can reduce the pressure, then there will be no formation of gas hydrate। तो उसका प्रोसीजर सिंपल है, आपके पास सब चार्ट्स अवेलेबल हैं फॉर पर्टिकुलर इस गैस के लिए, नेचुरल गैस हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 ओनली। तो उनके लिए डिफरेंट प्रेशर्स पे और टेम्परेचर पे प्लॉट किए गए हैं जहां पर हाइड्रेट बन सकता है। तो वो एक टेम्परेचर ये है 40 और प्रेशर भी दिया, फिर 50 पे 100 पे प्लॉट हुए हैं, 100 पे 150 पे 170 पे, तो डिफरेंट प्लॉट्स प्लॉट किए गए हैं। अभी यहीं पे क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर भी है। तो नाउ यू कैन सी अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंड टेम्परेचर हाइड्रेट कर्व विल ईदर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। तो जब तुम उससे बाहर आ जाओगे तो उतने प्रेशर में बनेगा नहीं, तो वही मैं निकालना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इधर से मैंने प्रेशर लिया इनिशियल 1500 और उस प्रेशर के अकॉर्डिंग मैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ग्राफ तक गया, और उससे जब मैं नीचे गया तो मुझे फाइनल प्रेशर मिला है 800 सपोज। सो दिस इज द प्रेशर अंकित अप टू विच आई कैन रिड्यूस द प्रेशर इन द पाइपलाइन एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ गैस हाइड्रेट। वेरी सिंपल प्रोसीजर, जस्ट आपको जो ग्रेविटी मिला है। हाँ बट एक क्वेश्चन अभी और मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे, द गैस ग्रेविटी जो आपको मिली थी दिस वाज 0.685 and the procedure which I have told you it is only 4.6 gas gravity। तो एक्चुअली ऑयल फील्ड में जो ये ग्राफ प्लॉट हुए हैं ये थोड़े सिंपल हैं, लाइक जैसे 0.6 के लिए हुआ है, फिर 0.7 के लिए भी प्लॉट हुआ है, 0.8 के लिए प्लॉट हुआ है। तो आपको करना क्या है, जब आपके पास बीच का कोई नंबर आ जाए लाइक 0.685 या 0.62, तो वही फिर से इंटरपोलेशन लगेगा। आप पहले 0.6 पे अप्लाई कर लेना और प्रेशर सपोज 800 आ गया, फिर 0.7 के लिए भी करके देख लेना और सपोज प्रेशर आ गया 700। तो अब इन दोनों के बीच में इंटरपोलेशन लगा देना एंड द प्रेशर सॉरी जो प्रेशर आ रहा होगा वो करीबन 700 समथिंग आएगा, 720 आ गया मान लो। तो दैट विल बी द प्रोसीजर। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज एंड यू हैव टू सी। तो मेरे पास 0.675 था, तो मैंने दो ग्राफ यूज करे, 0.6 ग्रेविटी एंड 0.7 ग्रेविटी। ठीक है, तो ऐसे करके फिर आपको देखना होगा कि मैं वो ग्राफ आपको भेजूंगा ना जब अंकित, तो आपको दिखेगा कि वो ग्राफ, दीज ग्राफ्स आर ओनली प्लॉटेड फॉर 0.6 एंड 0.7। दे आल्सो एग्जिस्ट फॉर 0.8, they also exist, there is a graph for natural gas having specific gravity 0.5, but my question or my data says I need to have the specific gravity of 0.685, so I have used only two graphs for 0.6 and 0.7 and my 0.685 is in between of these two values। तो मैंने दोनों ग्राफ से फाइनल प्रेशर निकाल लिया और फिर उसके बाद मैंने इंटरपोलेशन से बीच का प्रेशर निकाल दिया 4.685। तो इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको हर ग्रेविटी का जो वैल्यू है उतना नहीं मिलेगा, लाइक 685, 0.684, 0.683, 0.682, तो हर एक पॉइंट पे तो ग्राफ नहीं अवेलेबल होगा आपके पास, बट ऐसे अवेलेबल है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो यू कैन अप्लाई द इंटरपोलेशन। इज दैट क्लियर to everyone? If there is any doubt, please let me know. Amir has asked one more question. Sir, does that mean we reduce the pressure in one step to 800 psi and the pipeline operates at this point? मेरा हाँ अमीर, इसका मतलब ये हुआ कि if the pressure variation, like if the pipeline is going above और वैली में जाती है, तो in between 1500 to 800 you are not going to experience any hydrate formation। इसका मतलब ये है। रिड्यूस का मतलब तो हम कैसे रिड्यूस करेंगे, ऐसे तो हम
प्रेशर रिड्यूस नहीं करते हैं, फ्रिक्शन से प्रेशर रिड्यूस होता है समटाइम। जब आप कहीं किसी हिल पे या वैली में जाते हो तो प्रेशर वेरिएशन फिर से आते हैं, बट किसी भी पॉइंट पे यदि प्रेशर 800 से नीचे होने चालू हो गया तो देन देयर इज अ चांस दैट यू मे हैव द हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो वो बचाने के लिए हमें वो प्रेशर जानना है कि कितने प्रेशर तक हम खेल सकते हैं। मतलब देर में भी वेरिएशन ऑफ 1500 से 1400 आ गया, 1300 भी है, 1200 भी है, 11 है, किसी दूसरे जॉइंट पे 850 पहुंच गया, ठीक है, और किसी दूसरे जॉइंट पे 1100 आ गया, बिकॉज अब आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली बदलेगा। तो इतने प्रेशर वेरिएशन को हमने रेंज में रखा है, देन देर विल बी नो प्रॉब्लम। तो अप टू 800 psi यू कैन गो। No, I'm not saying they will form below. The question, you have not seen the question carefully. Can the pressure be lowered without expecting hydrate formation? I'm not saying low. I'm saying up to 800. मैं लो तो बोला ही नहीं, मैं तो 800 तक बोला बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने कराए थे ये मैं आपको स्लाइड के साथ ही भेज दूंगा। देयर विल बी ग्राफ्स आल्सो, तो उसको एक बार देख लेना। जो प्रोसीजर मैंने रिपीट किया है तो वो एक बार आप फिर से देख लेना, एंड कोई डाउट आएगा तो मुझे बताना। एंड ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम पता करते हैं कि कहाँ तक हम प्रेशर तक खेल सकते हैं। तो वो हम बस चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाह रहा था, आपको टेम्परेचर पे भी ध्यान रखना है। तो प्रेशर के साथ साथ हमें टेम्परेचर का भी बहुत रोल प्ले होता है, बट कंसीडरिंग दिस आई एम कंसीडरिंग दैट देयर विल बी कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर पे वो बात कर रहा है। तो इट इज अंडरस्टूड दैट प्रेशर इज ओनली 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो प्रेशर बदलोगे तो ये प्रेशर, फिर ये टेम्परेचर चेंज करोगे तो दिस प्रेशर विल अगेन चेंज। ओके, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? सो आई विल स्टॉप हियर टुडे। सो मैंने आज एक न्यूमेरिकल करा दिया। हाइड्रेट के ऊपर जो टेक्निकल डिस्कशन था रिगार्डिंग फॉर्मेशन, फेज बिहेवियर, स्ट्रक्चर्स, वो सब हो चुका है। दिस वाज दी सब सॉरी, दिस वाज दी सब सरफेस और इंजीनियरिंग डिस्कशन। After that, I will start the hydrate control, which will be more or less a surface discussion. Like what do we do in the refinery? What are the facilities available, and how do we control the hydrate formation at the surface? तो मैंने इससे पहले जो बताया आपको वो more or less engineering discussion था, more fundamental था। अब नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट व्हाई डू वी नीड टू प्रिवेंट दी हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे हम हाइड्रेट फॉर्मेशन जो डिहाइड्रेशन करते हैं, तो हाउ डू वी रीड दिस, सो एंड व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल टू डिहाइड्रेट द नेचुरल गैस। तो वो जो मेथड्स हैं दे विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। देयर इज वन मोर मिनट, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क। Okay, then if there is no question, then we'll meet in the next class. Bye everyone. हाँ कृष्णा।